السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ورلڈ A.N۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری ورلڈ A.N کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے دوستو، سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دوشیزہ اور جنزاد کے نکاح کی پراسرار کہانی۔ میرا نام کیفی ناز ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی اور رہائش کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اسی ہاسٹل میں ایک باجی تھی جن کا نام زرینہ تھا اور وہ عمر کے لحاظ سے ہم سب سے بڑی تھی۔ وہ ہر کام میں ماہر تھی۔ ہم سب ان سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہت دلچسپ بھی تھی۔ ہم جب بھی کام سے فارغ ہوتے تو ہم زرینہ باجی کو گھیر کے بیٹھ جاتے اور وہ ہمیں مختلف قصے اور کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ایک روز جب ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ ہمیں ایک کہانی بتانے لگی کہ ان کے جاننے والوں میں سے ایک رشتہ دار وشاکھاپٹنم، جو کہ انڈیا کا ایک معروف شہر ہے، وہاں رہا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کل 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ان کی بیٹی جس کا نام فضا تھا۔ نہایت ہی خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ اس کے گھٹنوں سے بھی بڑے بڑے بال اس کی خوبصورتی کو دوبالا کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی پرکشش لڑکی تھی، جو کوئی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ فضا ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ سلیقہ مند بھی۔ وہ اپنے پورے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ ہمیشہ جلدی کام ختم کر کے نہا لیا کرتی تھی، پر اس دن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کافی دیر ہو گئی اور کام سے فارغ ہوتے اور نہاتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ فضا نہا لینے کے بعد چونکہ اس کے بہت لمبے بال تھے، گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، تو بالوں کو خشک کرنے صحن میں آ گئی۔ وہاں بال سکھانے لگی۔ اس کی امی نے اسے بہت منع کیا، لیکن بسائی کرتے کرتے بالوں کو خشک ہی کرتی رہی۔ شام گزر گئی، رات بھی کام کی مشغولیت میں پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرے دن صبح جب ناشتے سے فارغ ہو کر فضا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مسلسل گھورے جا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے لگا کہ ایک بلّا ہے، سیاہ رنگ کا۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہے۔ وہ نہ جانے کب سے اسے کام کرتے دیکھ رہا ہے۔ فضا اسے اگنور کر کے دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بال آگے کو آ رہے تھے۔ انہیں سمیٹتے ہوئے دوبارہ اس کی نظر بلے پر پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، نہ جانے کیوں، پر وہ بلّا تو جیسے وہاں جم کے رہ گیا تھا۔ فضا نے ایک بار پھر اسے نظر انداز کیا کہ عام سا ہی بلّا ہے، کیا پتہ کھانے کی خوشبو سونگھ کر آ گیا ہو۔ پھر کچن سے ڈائننگ ہال تک اور ڈائننگ ہال سے کمرے تک، نہ جانے کب تک وہ بلّا کبھی کھڑکی سے تو کبھی دروازے کی اوٹ سے فضا کو اپنی نظروں کا شکار بناتا رہا۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا۔ پھر تو اس دن سے یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ بلّا روز متعینہ وقت پر آ کر ایک جگہ سے لگ کر ٹکٹکی باندھے فضا کو ہی دیکھتا رہتا۔ فضا کا دھیان ہمیشہ تو وہ کھینچ نہ پاتا تھا، مگر جب بھی فضا کی نظر اس بلّے پر پڑتی تو اسے اچھا محسوس نہ ہوتا۔ وہ اسے بھگانے کی غیر اہم سی کوشش بھی کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی بلّا ٹس سے مس نہ ہوتا، تو پھر وہ بھی دھیان نہ دیتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ ایک مرتبہ فضا کا موڈ کسی بات پر بہت خراب تھا اور اتفاق سے اسی دن اس کے والدین بھی گھر پر نہ تھے۔ وہ معمول کے مطابق کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے بلّے پر پڑی، جو کہ اسے دیکھنے میں محو تھا۔ فضا نے اسے بھگانے کی کوشش کی، وہ نہ بھاگا، تو فضا نے اپنے سامنے موجود چھری کو اٹھا کر اس کی طرف اسے بھگانے کے ارادے سے الٹا کر کے اچھال دیا۔ اس چھری کی نوک جا کے سیدھا اس بلّے کے شانے پر لگی۔ اس سے خون رسنے لگا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید اسے گہرا زخم آیا ہے۔ حالانکہ فضا اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، وہ تو بس ڈرانے اور بھگانے کے طور پر اس نے ایسا عمل کیا تھا۔ فضا نے بلّے کو سامنے جا کر دیکھنا چاہا، لیکن وہ اٹھ کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ فضا کو کسی مخلوق خدا کو انجانے طور پر ہی صحیح تکلیف دے کر بہت غم ہوا۔
रात देर तक वो इस बारे में सोचती रही, करवटें बदलती रही और फिर ना जाने कब फिजा नींद की वादियों की मुसाफिर हो गई। सुबह उसे बेसब्री से उस बिल्ली का इंतज़ार था कि अगर वो आ जाए तो वो कम से कम उसकी मरहम पट्टी कर दे कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन उस दिन वो बिल्ला ना आया और फिर उस दिन तो क्या, वो बहुत दिनों तक ना आया। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए। अब तो फिज़ा भी कुछ इस वाक़े को भूलने लगी थी। एक दिन शाम के वक़्त मगरिब की नमाज के बाद जब फिज़ा अपने वालिदैन के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। फिज़ा के बाबा जानी उठकर दरवाज़ा खोलने गए। किसी अनजान मेहमान की आमद पर फिज़ा की वालिदा ने फिज़ा को अंदर जाने को कहा। फिज़ा चाय की ट्रे संभालते किचन की तरफ जाने लगी। आने वाले मेहमान आम इंसानों से कुछ अलग ही नज़र आते थे, क्योंकि उनके कद बहुत लंबे थे। उनकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत और सुनहरे बाल थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे। सलाम के बाद फिज़ा के अब्बू ने उन्हें सोफे पर बैठने को कहा। मेहमान बैठते ही बिला किसी तज्जुब के कहने लगे, चले फिर कल के निकाह की तैयारी कर लेते हैं। फिज़ा के अम्मी अब्बू तो चौंक पड़े कि ना तो उनके रिश्तेदारों में किसी की शादी है, ना ही मोहल्ले में किसी की, तो फिर कैसा निकाह, किसका निकाह। उसके बाबा जानी ने हैरान होते हुए मेहमानों से पूछा, आप शायद किसी गलत पत्ते पर आ गए हैं, यहाँ तो किसी का निकाह नहीं है। अनजान मेहमान कहने लगे, जी हाँ, आप ही की बेटी का निकाह है, हमारे बेटे अब्दुल्ला से। फिज़ा के वालिदैन तो जैसे सख्ते में आ गए। उसके बाबा गुस्से से कहने लगे, जनाब कुछ होश तो है आपको, ये शरीफों का घर है, आपकी जुर्रत कैसी हुई ऐसी बेहुदा बात करने की। हम मेहमानों की इज्जत करने वाले लोग हैं, हमें किसी गैर अखलाकी रवैये की तरफ ना उभारिए। आपके लिए यही बेहतर होगा कि चाय पीकर तशरीफ़ ले जाइए, आप शायद किसी गलत पत्ते पर आ गए हैं। मर्द मेहमान ने कहा, बिला किसी बहस और अपनी शनाख्त छुपाते हुए, आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम आपकी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम कौम जन्नात से हैं और हमारा एक ही बेटा है अब्दुल्ला, बकौल उसके जो उसने हमें बताया है कि मामूल के मुताबिक जब हमारे कबीले के लोग बाद मगरिब अपने रास्ते से गुज़र रहे थे तो मेरे बेटे की नज़र आपकी बेटी पर पड़ी, जो अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गाती जा रही थी और साथ ही साथ अपने लंबे बालों को सुखाने में मसरूफ़ थी। तभी से वो उसके इश्क में मुब्तला हो गया। हमने इब्तदा में उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा निकाह हमारे कबीले में ममनू है, मगर वो ना माना। वो रोज़ाना यहाँ आया करता था। फिर एक दिन आपकी बेटी ने उसे चाकू मारकर ज़ख्मी कर दिया। वो ज़ख्म बहुत गहरा था कि नासूर बनता गया। वैसे तो हम अपने परेशान करने वालों और हमें नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ते, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला की ज़िद की वजह से हम किसी भी अमली कार्रवाई से अब तक गुरेज कर रहे थे। हमारे बहुत इलाज मुआलजे के बाद वो कुछ बेहतरी की तरफ है, मगर वो ना ही कुछ खाता है और ना ही पीता है। उसकी एक ही ज़िद है कि वह आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान पर भी बन सकती है। हम अपने बेटे की ज़िद के आगे मजबूर होकर आए हैं और चाहते हैं कि हमारे बेटे का निकाह आपकी बेटी फिज़ा से कर दिया जाए। अगर आपको हमारी बताई हुई किसी बात पर भी शक व शुबा हो तो बेशक फिज़ा से पूछ ले। तभी फिज़ा के माँ के जहन में वो सारा किस्सा आ गया जो फिज़ा ने कुछ दिन पहले बिल्ले के बारे में बताया था। अनजान मेहमान कहने लगे, हम बस इतना ही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द निकाह मुनक्कद कर दिया जाए, यही आपके और आपकी बेटी के हक में बेहतर होगा। हम कल इसी वक्त गवाह लेकर हाजिर होंगे। अगर आप कुछ एहतमाम करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, इनकार की सूरत में आपकी बेटी जान से जाएगी। ये सब कुछ बता के सलाम करने के बाद वो जन्नत गायब हो गए। फिज़ा के वालिदैन की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में ये क्या से क्या हो गया। फिज़ा अब तक की सारी बातें पर्दे के पीछे से लफ्ज़ बलफ्ज़ सुन रही थी। उसकी आवाज़ तो जैसे हलक में ही फंस के रह गई थी। फिज़ा की वालिदा तो अचानक ही चकरा कर गिर गई।
फिज़ा के बाबा ने अपनी बेगम को संभाला और फिज़ा को पानी लाने को कहा। जब उन्हें होश आया तो काफ़ी रात गुजर चुकी थी। फिज़ा और उसके वालिदैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कौन उसकी इस मुश्किल हालात में मदद करेगा। उसके बाबा जानी ने बहुत से आमिलों के साथ और पीर फ़कीरों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई काम ना आया। उनके पास अब सिर्फ चंद घंटों का ही वक्त था, क्योंकि अब्दुल्ला के वालिदैन उन्हें ये धमकी देकर जा चुके थे कि अगर उन्होंने फिज़ा का निकाह उनके बेटे से ना किया तो उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाएगी। फिज़ा अपनी वालिदैन की अकलौती बेटी थी। उसके वालिदैन ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर हज़ारों ख्वाब देखे थे, उनके हज़ारों अरमान थे। आज शायद हर ख्वाब दम तोड़ रहा था और हर अरमान सर झुका चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कुछ ही पल में उनके साथ क्या होने वाला है। फिज़ा तो ऐसी हो चुकी थी जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो, बस एक जगह पड़ी है तो पड़ी है, उठने का नाम ही नहीं। कल से घर में किसी ने एक लुक़मा तक ना खाया था। फिज़ा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजाने में की हुई गलती उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। बिलाखिर वही हुआ जो उसकी किस्मत में लिखा था। मगरिब का वक्त होती ही उनके दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। वही अनजाने मेहमान अपने साथ कुछ और लोगों को लिए हुए अंदर दाखिल हो गए और उनके साथ उनका इकलौता बेटा अब्दुल्ला भी था, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो इंतहाई खूबसूरत और खुश शक्ल था। ये वही घड़ी थी जब अब्दुल्ला का फिज़ा से निकाह होना था। फिज़ा के वालिदैन को फिज़ा की जान प्यारी थी। उन्होंने अपनी अकलौती बेटी को सफ़ेद लिबास में मलबूस किया और डाइनिंग हॉल की तरफ ले आए। चंद गवाहों की मौजूदगी में जिनसाद अब्दुल्ला का निकाह फिज़ा से हो गया। निकाह के बाद अब्दुल्ला ने फिज़ा से कहा कि अगर तुम अपने वालिदैन से अच्छे तरीके से मिलना चाहती हो तो खूब मिल लो, मगर एक बात याद रखना, आज तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे वालिदैन के साथ ये आखिरी रात होगी। आज के बाद हम तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। इसके बाद तुम अपने वालिदैन से कभी नहीं मिल सकती। हाँ, मगर सिर्फ एक बार पूरी ज़िंदगी में किसी एक मौके पर जब तुम चाहो तो अपने वालिदैन से मिलने आ सकती हो, लेकिन उस मुलाकात के लिए भी तुम्हें कुछ शराइत पर पाबंद किया जाएगा। फिज़ा के वालिदैन जो पहले से ही अपनी बेटी के जिनजात से ज़बरदस्त निकाह पर गमज़दा थे, उन्होंने जब ये सुना तो तड़प के ही रह गए। बेटी को गले लगा लिया और अपनी बेटी से आखिरी जुमले कहे कि ए बेटी, हमने हमेशा दुआओं में तुम्हारी खुशियाँ मांगी थी और आज भी हमारी यही दुआ है कि तुम कहीं भी रहो सदा खुश रहो। फिज़ा के वालिदैन ने फिज़ा को गले से लगाया। फिज़ा के आंसू तो गोया उसके दामन में जज्ब हो रहे थे। फिज़ा ने अपने वालिदैन को आखिरी सलाम किया और इस तरह जिनजाद अब्दुल्ला फिज़ा को लेकर अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो गया। इस वाक़े को कई साल गुजर गए, फ़िज़ा ना आई। फ़िज़ा के वालिदैन उसकी याद में तड़पते रहे। फ़िज़ा की जुदाई के गम में उसकी माँ निढाल होती रही और इसी तरह दार फ़ानी से रुखसत हो गई। अब्दुल्ला ने कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ किसी एक मौके पर अपने वालिदैन से मिलने आ सकती हो, तो फ़िज़ा ने यही कहा था कि वो अपने वालिदैन में से जिस किसी की भी पहले वफ़ात हुई उसके जनाजे में शिरकत करना चाहेगी। यही वजह थी कि जब फ़िज़ा की वालिदा का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला ने उसे उसकी माँ के घर पहुँचा दिया। सारे रिश्तेदार उनके घर में मौजूद थे। फ़िज़ा के वालिद और सब रिश्तेदार ये जानते थे कि फ़िज़ा नहीं आएगी, लेकिन क्या देखते हैं कि अचानक फ़िज़ा एक छोटे से बच्चे को लिए हुए घर में दाखिल हो रही है। हर किसी की नज़र फ़िज़ा पर थी। फ़िज़ा की गोद में जो बच्चा था वो निहायत ही खूबसूरत और खुश शक्ल था। फ़िज़ा घर में दाखिल होती ही अपनी माँ के जनाजे से लिपट गई और काफ़ी देर तक रोती रही। उसके रिश्तेदार भी उसे गमज़दा नज़रों से देखते रहे और उसके हालात पर अफसोस का इजहार करते रहे। हर किसी ने फ़िज़ा से बात करना चाही, लेकिन फ़िज़ा ने अपना मुंह ना खोला। ऐसा महसूस होता था जैसे उनसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी और उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी गोद में खेलता हुआ बच्चा मुसलसल अपनी माँ को देख रहा था।
हर किसी की नज़र उस बच्चे पर थी। आखिरकार क्या वजह थी कि फ़िज़ा कुछ बोल नहीं रही थी? फ़िज़ा ने क्यों कुछ भी नहीं कहा? हर किसी के जहन में यही सवाल था। आखिर तदफीन के बाद उसके बाबा जानी उसके पास आए। इतने मुद्दतों बाद अपनी बच्ची को देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। उन्होंने अपनी बेटी से बड़ी प्यार और मोहब्बत से सर पर हाथ रखते हुए शफकत से सिर्फ इतना ही पूछा कि फ़िज़ा तुम ठीक तो हो, खुश तो हो ना बेटी? शायद इसी जुमले का जवाब ही फ़िज़ा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने बाबा के सीने से लगकर ये कह दिया कि हाँ मैं खुश हूँ। ये उसका आखिरी जुमला था कि चंद लम्हों में उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले उसके पास खेल रहा था अब वो गायब हो चुका था। फ़िज़ा पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढने लगी। हर तरफ शोर शराबा मच गया कि वो खूबसूरत बच्चा जो फ़िज़ा की गोद में था, जो यकीनन उसका बेटा था, वो कहाँ है। हर कोई उसे ढूंढने लगा, लेकिन फ़िज़ा को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसे भूल कर भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसने जज्बात में आकर वो गलती कर दी। उसने अपने बाबा की पूछने पर उन्हें तफसील बता दी कि वो अब्दुल्ला के साथ बहुत खुश है, वो सच में उससे बहुत प्यार करता है और इसी प्यार का ये प्यारा सा तोहफ़ा बेटी की सूरत में है। जिनसाद अब्दुल्ला ने फ़िज़ा को उसकी वालिदा के जनाजे में जाने से पहले एक ताकीद की थी कि ये बात हमेशा याद रखना कि जितनी देर भी तुम वहाँ रहोगी अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करोगी, और अगर तुमने गलती से भी एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से अदा किया तो ये तुम्हारे लिए भयानक अंजाम साबित होगा। ये बात तो सच थी कि अब्दुल्ला फ़िज़ा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी क्या वजह थी कि उसने किसी से भी बात करने के लिए फ़िज़ा को मना कर दिया था। शायद कौमी जन्नात अपनी दुनिया की बातें किसी को बताना पसंद नहीं करते, या फिर उनके कबीले की कोई रवायत थी। जो भी था, फ़िज़ा इस बात की पाबंद थी। उसने अपने जिनजात शोहर की हुक्म अदूली की और फिर वही हुआ जो उसके साथ होना था। उसे इस गलती का भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। उसका जिनजात शोहर अब्दुल्ला हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर और अपने बेटे असद को लेकर जा चुका था। फ़िज़ा और उसके वालिद बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे कि शायद वो वापस आएगा, लेकिन वो ना आया। उस दिन के बाद से फ़िज़ा की हालत बिगड़ने लगी और वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई। आज भी उसे दौरे पड़ते हैं, शायद अपने बेटे की जुदाई के गम में, या फिर अपने जिनजात शोहर अब्दुल्ला की बताई हुई बात ना मानने की वजह से। अब तो उसके वालिद भी इस दुनिया से जा चुके हैं और फ़िज़ा आज भी किसी वेलफेयर ट्रस्ट ओल्ड होम में रहती है।